Hi guys, how are you doing? If you have not subscribed my channel, do subscribe it and do hit the bell button for the latest updates. So our today's topic is bank reconciliation statement. So what is bank reconciliation statement? Bank reconciliation statement is a document prepared by the businessman or account holder on a particular date to reconcile the cash book balance with his bank balance. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बिजनेसमैन के थ्रू बनाया जाता है, जिसको कि हम अकाउंट होल्डर भी कहते हैं, जिसका कि बैंक में अकाउंट है। ये एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डेट को बनाया जाता है। पर्टिकुलरली दिस इज मेड वंस इन अ मंथ to reconcile, to match the cash balance with the bank balance. Means it is a statement that matches the cash balance with bank balance of businessman. This document is prepared to ensure the accuracy of cash records and to avoid frauds. Mainly इसमें हम क्या करते हैं कि कैश बैलेंस जो हमारी कैश बुक शो कर रही है और जो बैंक का बैलेंस हमारी पासबुक शो कर रही है, उनको मैच किया जाता है। ये क्यों बनाया जाता है? ताकि एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स इंश्योर हो सके कि कोई फ्रॉड्स वगैरह नहीं हुए हैं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, वी नीड टू नो अबाउट द कैश बुक. So how do we make a cash book? Double column cash book. Here on the debit side, first column is date column, then descriptions or we can write particulars, then cash column, then bank column. This debit side is called the receipt side of cash book, and on the credit side, that is called payment side. Again, the same columns we will make: date column, description column, cash column and bank column. Now, first of all, we will talk about our cash book that is maintained by a businessman, by us. Amount deposited, both cash and check, into the bank is recorded in bank column of this cash book at the debit side, while withdrawals and issue of checks or any other kind of payments are recorded on the credit side of cash book. The debit side of cash book is known as receipt side and the credit side of cash book is known as the payment side. जो भी हम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं या कैश में और चेक में इनटू द बैंक is recorded in the bank column of cash book. Here in the bank column of cash book इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। और विड्रॉल्स, जो भी हम अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट से निकालते हैं या चेक्स को इशू करते हैं और एनी अदर काइंड ऑफ पेमेंट जो भी होती है हम पेमेंट्स करते हैं, वो क्रेडिट साइड पे कैश बुक की हम रिकॉर्ड करते हैं। तो as I have already told you, the debit side of cash book is known as receipt side, उसको receipt side बोला जाता है, and credit side of cash book is known as payment side. Here in cash book, we are going to check only the bank column because we have to match the bank balance in our BRS. So this was all about the cash book. Now come to the bank account. Now we will understand the concept of our bank account. Our bank also maintains our account in its own books. हमारा बैंक भी क्या करता है, अपनी बुक्स में हमारा अकाउंट बनाता है। Deposits made by us into the bank are recorded in the credit side of our passbook, while withdrawals on the debit side. तो देखिए हमारा बैंक क्या करता है,
अगर हम कुछ भी डिपॉजिट्स करते हैं तो हमारा बैंक हमारी पासबुक में उसको कहाँ रिकॉर्ड करता है? क्रेडिट साइड पे, ऑपोजिट टू आर कैश बुक। जब हमने कैश बुक बनाई थी तो हमने जो भी हमारा डिपॉजिट्स आते थे, कैश आता था, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते थे? रिसीट साइड पे, डेबिट साइड पे। इसमें क्या है? ऑपोजिट टू द कैश बुक, डिपॉजिट्स जो हम बैंक में डालते हैं उसको बैंक कहाँ रिकॉर्ड करता है? इन द क्रेडिट साइड ऑफ आर पासबुक। वाइल विड्रॉल्स, जो भी हम पैसे निकालते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड करता है? डेबिट साइड पे। दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ आर बैंक अकाउंट। So now here it comes our main point, that the transactions of our deposits and withdrawals of cash book should match with our bank statement. जो भी हमने अपनी कैश बुक में डिपॉजिट्स किए, पैसे डाले या विड्रॉल्स जो भी हमने पेमेंट्स की, वो किससे मैच करना चाहिए? हमारा वो बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करना चाहिए। बट समटाइम्स दे डिफर विद ईच अदर। कई बार क्या होता है कि उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। एंड इफ दे डिफर देयर मस्ट बी सम रीजंस ऑफ देयर डिफरेंस। इट मीन्स देयर आर सम एरर्स एंड ओमिशंस इन ईदर साइड। तो ये किस कारण से आता है? हमारे पास कैश बुक में कैश बैलेंस ज्यादा शो हो रहा है, पासबुक में हमारा बैलेंस कम शो हो रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? कुछ एरर्स एंड ओमिशंस, कुछ गलतियां या कुछ भूल हुई है जो हमने एरर मतलब एंट्री गलत हमने पास कर दी, या ओमिशन हुआ है कि हमने उस एंट्री को करना ही, रिकॉर्ड करना ही भूल गए। टू रेटिफाई और करेक्ट दोज एरर्स or mistakes, we prepare a statement. That statement is called bank reconciliation statement. उन गलतियों को, उन मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए एक ऐसी स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसे कि हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। इसके कारण क्या है? इनके डिफरेंसेस क्यों आ जाते हैं? देयर कैन बी सो मैनी रीजंस ऑफ दीज डिफरेंसेस। एज फॉर एग्जाम्पल्स, हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे नंबर 1 पे है चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने तो चेक इशू कर दिया हमारे कस्टमर को, क्लाइंट को, जिससे भी हमने गुड्स ली, पर उसको क्या किया? उसने अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है पेमेंट के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा? अगर हमने अपना चेक इशू कर दिया किसी को, तो हम तो चेक बुक में, अपनी कैश बुक में एंट्री कर देंगे ना कि वी हैव इशूड अ चेक। तो उससे हम क्या कर लेंगे? अपना बैलेंस कम कर लेंगे। और बैंक को तो अभी पता ही नहीं कि हमने चेक इशू किया है, हमारा बैलेंस हमने कम कर लिया है। बैंक के पास तो जब वो चेक आएगा तभी उसकी एंट्री होगी। तो बैंक पासबुक का बैलेंस आपको क्या शो होगा? बढ़ा हुआ। तो इसको हम इसकी करेक्शन करेंगे। नेक्स्ट, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। कुछ ऐसे चेक्स हमारे क्लाइंट्स से हमको आए जो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो हमने अपनी कैश बुक का बैलेंस क्या कर लिया? बढ़ा लिया, इंक्रीज कर लिया। पर बैंक में अभी वो चेक क्लियर नहीं हुए हैं, तो बैंक का स्टेटमेंट या बैंक की पासबुक हमें वो बैलेंस क्या दिखाएगी? कम दिखाएगी हमारी कैश बुक से। नंबर 3, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने कुछ सिक्योरिटीज ले रखी थी, कुछ शेयर्स वगैरह ले रखे थे, जिसका कि इंटरेस्ट हमें आया, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, तो हमारी बैंक की पासबुक क्या बैलेंस शो करेगी? इंक्रीज्ड बैलेंस बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमें उसकी नॉलेज नहीं थी, तो हमने वो एंट्री नहीं की, तो हमारी कैश बुक क्या बैलेंस शो करेगी? कम शो करेगी। इस वजह से भी डिफरेंस दोनों में आ सकता है। नंबर 4, बैंक चार्जेस लेविड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक अपनी सर्विसेज देता है क्लाइंट को, तो वो कुछ चार्जेस लगाता है, जैसे आपने लॉकर ले रखा है या चेकबुक बैंक देता है, या कुछ भी चार्जेस नॉमिनल बैंक लगाता है, तो वो बैंक डेबिट कर लेता है। जो भी हमारे खर्चे होते हैं या हम पेमेंट निकालते हैं, वो बैंक उसको डेबिट कर देता है। बैंक ने वो चार्जेस लगा दिए,
अपना बैलेंस हमारा कम कर दिया पासबुक का, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमारी कैश बुक क्या करेगी, इंक्रीज बैलेंस शो करेगी, तो इस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। नंबर 5, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने कुछ शेयर्स वगैरह ले रखे थे या किसी प्रॉपर्टी का किसी इनकम का इंटरेस्ट हमें आता है, तो वो बैंक ने कलेक्ट कर लिया है, पर हमें इसकी नॉलेज नहीं है, तो हम कैश बुक में ये रिकॉर्ड नहीं किया है हमने, तो क्या होगा, बैंक पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ शो करेगा और हमारी कैश बुक क्या बैलेंस शो करेगी, कम बैलेंस शो करेगी। नंबर 6, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने बैंक को कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि हमारा जो इंश्योरेंस की प्रीमियम के इंस्टॉलमेंट है या रेंट है या टेलीफोन के बिल्स हैं या इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, वो आप डायरेक्ट पे कर दीजिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, कुछ डायरेक्ट पेमेंट्स कर दी, जिस वजह से उन्होंने हमारी पासबुक का बैलेंस कम कर दिया। बट इस चीज़ की हमें नॉलेज ना होने के कारण हमने अपनी कैश बुक में एंट्री नहीं की है, तो हमने अपना बैलेंस बढ़ा हुआ ही शो कर रहे हैं, पर पासबुक में हमारा बैलेंस कम हो गया है। इस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। डायरेक्ट डिपॉजिट्स इनटू द बैंक बाय कस्टमर्स बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने अपने कस्टमर्स को अपने अकाउंट नंबर दे रखे हैं कि आप डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, तो कुछ कस्टमर्स ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डिपॉजिट कर दिए हैं, हमारी बैंक का बैलेंस बढ़ चुका है, बट इस चीज़ की हमें ना नॉलेज होने के कारण हमने वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हमारा कैश बुक क्या बैलेंस शो करेगी, कम बैलेंस शो करेगी। ओके चिल्ड्रन, तो इन नेक्स्ट वीडियो I'll tell you that how we will prepare the bank reconciliation statement, and thank you for patient hearing. Have a nice day.